Okay, that way easy. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, Sandeep. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Let's get started with our Mangala Charan, that prayer from introduction. Just read the first one. Om Jnana Timrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Hari Bol, Hare Krishna. Again, welcome you all for Bhagavad Gita class. So let's start with one question. And the question goes to Vinu. So Vinu, why we should read Bhagavad Gita? To to get good habits, and to get good karma. Good karma, right? What else? What else Krishna wants to perform us in this material world or in this human birth, right? This is the rare birth. There should be some very specific that he's keep coming every millennium after millennium, and he's giving this knowledge just to get us the good karma. Good Connect karma. with Krishna. No, let's hold on. I know you know the answer. I want like his thoughts also. Yeah, what else we know? Just to be good and do good, and Yeah, and help each other. help each other. No, yeah, help each other, have a good karma, be a good and have good habits, right? Right. These all All are these things are going to lead us to mingle with Krishna, or mingled with, yeah, yeah. correct. So now, whatever the habit, good thing, as soon I will leave this body, is this going to carry forward? No. Right? That is the challenge. You can be so good, you can have your own karma, you will take your own karma thing along with you, but everything, whatever you do, is all associated with my bodily thing. I have to do the good for other person. It's a bodily concept. I'm taking care of my children, say that I have to do. But these are the things, as soon you will leave this body, everything will go away. So now, what is the purpose of reading Bhagavad Gita? What is the message Krishna is giving? Yeah, all these things, what you said, we know these are not completely wrong. These are definitely as initial. When we start reading are connected with the devotees also, then automatically our purity will start. That purity will come from within our heart. And today we will discuss few things because this chapter is talking about dhyan, meditate, and dhyan yoga. Yoga is means connecting to the Krishna. That is a typical thing, right? But now in the material world and there's all the different philosophers जो हम लोगों को, वैसे तो हिंदी की क्लास था, जो हम लोगों को ये ज्ञान बांट रहे हैं, दुनिया भर के ज्ञान है, राइट? सो उन ऑल ऑफ देम हम लोगों का ओवरऑल इंटेंशन क्या है भागवत गीता पढ़ने का? कि भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ना सिर्फ पढ़ने से ही नहीं जुड़ेंगे, हमको जो वो बोल रहे हैं
जो भगवान का कहा हुआ शब्द है, हम उसको अपने जीवन में पालन करें, भगवान को समझें, हु इज द गॉड। दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंट, द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द कृष्ण। जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हु इज दैट पर्सनालिटी, तब हमको भागवत गीता समझने में बहुत आसान लगेगा। क्योंकि वो आसान क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें सब इंस्ट्रक्शंस है ना। तो भागवत गीता के जो इंस्ट्रक्शन है, हमें अपनी लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं। अब हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, हम बहुत सारा प्रैक्टिकल, बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत सी केमिस्ट्री लैब, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको बहुत सब लैब थ्योरी पढ़ाते जाए और लैब में ना ले जाए, प्रैक्टिकल ना करके दिखाएं, तो देन यू वोंट कनेक्ट दैट थिंग, राइट। सो कृष्णा इज गिविंग द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल प्रोसेस सो दैट वी कैन, हम उनसे जुड़ सके। भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका यह है, हम भक्तों की संगत में रहें, एक तो भागवत गीता पढ़ें, और उन इंस्ट्रक्शन को जो पहले फॉलो कर चुके हैं, जैसे हमारे गोस्वामी हैं, श्रील प्रभुपाद है, और बहुत सारे आचार्य हैं हमारे इस परंपरा में, जो इस नॉलेज को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके हमें अपने लाइफ से एग्जाम्पल बताते हैं। तो इसलिए हमारा होल पर्पस भगवान की किताबों को, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान को जानना है सबसे पहले। जैसे जैसे हम जानते रहेंगे, जैसे जब हम समझेंगे कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, वो तो मुझे पता है, जो आपने बताया भाई, कर्म अच्छा हो, दूसरों को हेल्प करें, ये मैं चाहता हूं कि पढ़ने के बाद मुझे ये हो। बट ओवरऑल हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम भगवान को भी समझें, कि भगवान बार बार क्यों आ रहे हैं, बार बार मुझे क्यों बता रहे हैं। फिर भी हम लोग मूर्ख इंसान हैं कि हम लोग ये जीवन के बाद दूसरा जीवन, ये चलते जा रहा है हमारा चक्र। तो हमें इस भागवत गीता के माध्यम से, इस थ्रू चैनल, हम लोगों को वो सब चीजें सीखने को मिलती हैं जो भगवान चाहते हैं कि इस जीवन में, इस बर्थ में हम लोग करें। वो बहुत जरूरी है, राइट। तो अब ये चैप्टर का जो मेन पर्पस था, ध्यान योग, जो हम लोग अब काफी हफ्तों से, महीनों से पढ़ रहे हैं इसमें, अभी आज हम लोग वो श्लोक के बारे में पढ़ते हैं जो अर्जुन के बहुत सारे डाउट थे। शुरू में डाउट हुआ कि भाई ध्यान तो मैं बैठ रहा हूं, पर ये माइंड को कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा एक दो श्लोक पर और एक कहानी से समझा था अपने इंटेंशंस के बारे में। पर अर्जुन का डाउट जो शुरू में था कि मैं इस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भगवान ने जवाब दिया, क्या दिया, कि एक ही तरीका है, आप इस भौतिक जगत से, इस मेटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना सीखिए। जब तक हम बहुत सी चीजों में अटैच रहेंगे तो हमारा ध्यान भगवान से जुड़ने और उस योग में लगेगा ही नहीं। योग सिर्फ आंख बंद करके बैठना योग नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटी और ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हम चैंटिंग एक करते हैं, जो भगवान का नाम, हम भक्तों के संगत में रहते हैं, कीर्तन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भागवत कथा शास्त्रों को पढ़ते हैं। ये सब बहुत सारे प्रैक्टिकल जब हम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है, अरे भगवान तो ये है, अरे भगवान ने हमें, मेरे लिए। कभी कभार आप पढ़ते रहेंगे भागवत गीता, आपको ऐसा लगेगा कि ये किताब सिर्फ मेरे लिए ही लिखी गई है। उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़, एक बार में कभी नहीं समझ आता है, बहुत से लोगों को मुश्किल होती है। आपको एक दो बार पढ़ना है, और जब हम भक्तों के साथ मिलते हैं तो हमारी जो जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों ने प्रैक्टिकल किया है, उनको पता चलता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो अब उसके बाद अर्जुन ने एक और सवाल पूछा। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, अभी मैं तीन श्लोक थोड़ा सा पढ़ता हूँ, श्लोक नंबर 37, 38 एंड 39, जहां पर अर्जुन का दूसरा सवाल आया। सवाल क्या? अर्जुन से, ओ कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एंड हु इज इन द बिगिनिंग टेक द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिलायशन विद अ फेथ, but who later desist due to the worldly mindedness and thus does not attain the perfection and mysticism. दूसरा उसमें कंटिन्यूशन है, ओ माइटी आम कृष्णा, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere. फिर तीसरा अर्जुन फिर पूछते हैं, दिस इज माई डाउट ओ कृष्णा, आई आस्क यू टू डिस्पेल इट कंप्लीटली, बट फॉर यू नो वन इज टू बी फाउंड हु कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। इज वेरी नाइस
कि ये सवाल में अब अर्जुन ने अपना तो डाउट क्लियर कर लिया, ये हमारा डाउट है। अब आप उन लोगों की बात बताएं जो भक्ति में तो आ जाते हैं, भक्ति शुरू करते हैं, पर उनको धीरे धीरे वो मतलब उस भक्ति का सोचते हैं कि ये भक्ति करके मैं मेटेरियली बहुत इंजॉय कर लूंगा। या कभी कभार क्या होता है कि मैं भक्ति में आ जाता हूं पर मैं उसको ढंग से पालन नहीं कर पाता। बहुत सारी चीजों के बारे में भगवान ने और एक चैप्टर में जाके बताया कि 4 किस्म के लोग मेरे पास आते हैं। उन चारों लोगों के बारे में हम थोड़ा और बाद में पढ़ेंगे, पर अभी जो डाउट अर्जुन का है वो है कि लोग बिविल्डर्ड हो जाते हैं और भक्ति में आते हैं, परेशान रहते हैं, और या भक्ति में आते हैं अपना मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए। अब ये दोनों चीजें हम लोगों को दिखेंगी, पर प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बारे में कि अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं, अगर आपने ये भक्ति की थोड़ी सी भी और आपको एक समय में ऐसा आया कि अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं या कोई भी ऐसा कारण होता है जो ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो अगर कारण दे रहे हैं मीन्स दैट कारण इज नथिंग बट एक्सक्यूज। हम कोई ना कोई बहाना बनाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वैसा करेंगे, या आज ऐसा कमिटमेंट हो गया। अब हम लोग जो जॉब में है तो कभी कभार होता है, चैलेंज आते हैं, बट हम उसको बार बार एक्सक्यूज ना बनाएं कि हम भागवत गीता पढ़ने का तो 5 मिनट भी समय नहीं है। जैसे लास्ट वीक मैंने पता नहीं आपकी क्लास में था या भागवतम में पूछा कि एटलीस्ट आपको इतने आवर्स हैं, इतने मिनट्स मिलते हैं, हम डेडिकेट सोने से पहले थोड़ा कर सकते हैं या उठने के बाद कर सकते हैं, जब आपको कन्वीनियंट लगे भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ें। वैसे पढ़ना तो एक चैप्टर चाहिए, और जो भक्त लोग होते हैं वो 3-3 चैप्टर 4 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, पर एटलीस्ट अगर हम एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाए, एक पेज का तो कंटिन्यूशन करें जिसमें 5 से 10 मिनट लगता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, 2 फायदे हैं इसके बड़े अच्छे। प्रभुपाद ने मैं एक श्लोक और पढ़ता फिर उसके बाद प्रभुपाद ने उसके फायदे बताए हैं जो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में भी। तो फिर भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 40 में, ओ सन ऑफ पार्था, the transcendently engaged in the auspicious activity does not meet with a destruction either in this world or in the spiritual. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Very nice. भगवान बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, जो फुल्ली इंगेज है, जो भक्ति में पूरी तरफ इंगेज है, वो चाहे इस पृथ्वी में रहे चाहे स्पिरिचुअल में रहे, उसका डिस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता हूं। दूसरे में बोलते हैं जो अनसक्सेसफुल योगी होते हैं, जो अनसक्सेसफुल कौन से लोग हैं, आफ्टर मेनी मेनी ईयर ऑफ एंजॉयमेंट ऑन द प्लैनेट of the pious living entity is born into the family of righteous people or into the family of right aristocracies. So यहाँ पे हमें दोनों तरीकों से समझना है, जो सक्सेसफुल योगी है और अनसक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का क्या फायदा है, आप लोगों ने कोशिश किया पर कुछ कारणवश आपकी भक्ति कंटिन्यू उस तरीके से नहीं चल पाई, पर भगवान को पता है कि आपने किया है, तो आपको वहीं से अगले जन्म में जहां पर जब आपको मनुष्य जीवन मिलेगा वहां से करने के लिए भगवान आपको ऐसा ऐसा कोई ना कोई अरेंजमेंट करेगी, जो हम सबको अभी किया है भगवान ने। दूसरा है भगवान आपको आफ्टर सो मेनी बर्थ, 2 तरीके से प्रभुपाद समझा रहे हैं। अगर अनसक्सेसफुल है तो आपको एरिस्टोक्रेट, आपने भक्ति की पर भक्ति में आपकी हमेशा इच्छा मेटेरियल चीजों और सेंस ग्रेटिफिकेशन को एंजॉयमेंट में लगी रही, कि आप हमेशा आपको लगता था कि मैं इंजॉय करूं। वो इंजॉयमेंट होती है कि मैं भक्ति करूंगा तो मेरे भगवान भला करेंगे, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे ये अचीवमेंट मिल जाएगा, भक्ति करूंगा मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। मतलब माइंड में भक्ति एक जरिया है कि मैं इस लाइफ में वो मेटेरियलिस्टिक इंजॉय करूं। अब सवाल पूछ सकते हैं प्रभु जी ये तो गलत नहीं है, हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी हो जाएगा चलेगा। भाई अब जब हम लोग गधों की तरह काम कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, तो कभी सैटरडे संडे भी होता है, कभी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना अब हमें थोड़ा बहुत तो हमारा हक बनता है, बिल्कुल बनता है। पर उस एंजॉयमेंट में आपको भगवान को साथ लेके चलना है। आपको एंजॉयमेंट है कि भाई अच्छा खाना है, आप अच्छा बनाइए, या अच्छा मंदिर में मिल जाता है, भगवान के थ्रू आपको अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है, जो एंजॉयमेंट करनी है, भगवान को हमेशा सेंटर में रख के करिए। वो भक्ति में हमेशा सक्सेसफुल। अगर उसमें भी आपको फेलियर मिलता है, जो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो आपको भगवान उस फैमिली में पैदा करते हैं
जहां पे भक्ति आपको पैदा होते ही शुरू हो जाती है, आपको इतने साल इंतजार करना नहीं पड़ता है। आपको बहुत डिवोशनल फैमिली में जन्म मिलने का मिलता है। जैसे हमारे कोई बच्चे हैं इधर, वो भक्तों के घर में पैदा हुए, आपको दिखेगा भी, उनके लक्षण अलग होंगे। उनको भक्ति 5 साल, जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला है, उस तरीके से शुरू करने का मौका मिलता है। अब उसमें जाने के बाद भी आपकी होगा कि आपके कोई कर्मों के हिसाब या अपनी इच्छा या कोई ऐसा डिजायर होगा जिसमें आप फॉल डाउन करेंगे, पर भी आपको वो अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं कि आपको बचपन से उन भक्तों के घर में जन्म लेकर के आगे भक्ति इसी जन्म में खत्म करने का मौका मिलता है, जो हम में से बहुत से लोगों को ये जन्म में मिला है। अब जो अनसक्सेसफुल है योगी, जो अनसक्सेसफुल हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि अपने इच्छा के लिए ही भक्ति मार्ग में आते हैं, या कभी भक्ति मार्ग में इन एंड आउट ओकेशनल होता है भाई, ओकेशनल पार्टी, ये सब वाले ओकेशनल भक्ति करते हैं। उनको हमेशा माइंड में रहता है, जैसे बहुत सारे भक्त मिलेंगे ऐसे जो ओकेशनली, भाई आज जन्मदिन है चलो मंदिर चले जाते हैं, चलो आज न्यू ईयर है मंदिर चले जाते हैं। वो अपने सुविधा अनुसार जाने की कोशिश करते हैं, पर भगवान की सेवा भी करते हैं, और हमेशा रहता है कि मेटेरियलिस्टिक मैं एंजॉय करूं। वो अनसक्सेसफुल रहते हैं इस बर्थ में, पर भगवान, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि मैं बहुत रईस रहूं, अमीर रहूं, तो ऐसे में उन लोगों को प्रभुपाद ने कहा है कि वो लोगों को एरिस्टोक्रेट फैमिली मिलती है। तो अब हम लोग सोचेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, पर बात यह है कि दुख तकलीफ उसमें कम नहीं होती। आपको, जैसे भाई कोई सेलिब्रिटी के घर में पैदा हो गए आप, बचपन से किसी चीज की कमी नहीं है, पर आपको जो कर्मों के हिसाब से तो दुख तकलीफ है वो मिलेगी ही मिलेगी, आप उससे नहीं बच सकते, क्योंकि आप अनसक्सेसफुल, आपने काफी अपने कर्मों के हिसाब से जो मिला है वो एरिस्टोक्रेट ऐसे सेलिब्रिटी फैमिली है, पर उसमें जो दुख तकलीफ है, ऐसा नहीं है आपको दिखेगा कि भाई हमारी जो सुसाइडल रेट है, जो परेशानियां हैं, सिर्फ गरीबों के घर में आ रहे हैं, मिडिल क्लास में, ऐसा नहीं है। ये इनके फैमिली में भी है, इसमें भी ये सब जो है वो है वहां पर सक्सेसफुल। वो अपने आप में, अपने आप, उनकी परेशानी कुछ अलग लेवल की है, पर परेशान वो भी बहुत है, पर है क्योंकि उसके मरने से पहले उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत रईस रहूं, ओकेशनली भक्ति कर लिया, पर अच्छी फैमिली में मिल गया, पर दुख तकलीफ रहना पड़ेगा। रूपाद एक और चीज बता रहे हैं इसमें, कि जिसने सक्सेसफुली ट्रांसेंडेंटल भक्ति किया, तो उसको हो भी सकता है कि हमें हायर प्लैनेट मिल जाए। अब स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, इंद्र लोक, ऐसी जगह में जाएंगे आप, हजारों साल तक वहां पे इंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद आपको, क्योंकि वो मेटीरियल वर्ल्ड है, आपकी जो जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पर 100 साल है, पर वहां पर हजारों साल है। आप इंजॉय करके फिर आपको वापस आना ही पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों केस में जो अनसक्सेसफुल है, जो एरिस्टोक्रेट फैमिली या रिच फैमिली में पैदा होते हैं, तकलीफें उनको हैं, हायर प्लैनेट भी जाएंगे। पर जो सबसे अच्छी बात है, जो अच्छा है, प्रभुपाद एक और उसमें बताया 42 श्लोक में, or he will take his birth in the family of the transcendently who is a great in the wisdom, certainly such birth is rare in this world। जो भक्त थोड़ा सा भी प्योर भक्ति करके जाता है तो उसको ऐसी फैमिली में मिलता है, जो बहुत ही रेयर कंडीशन है, जो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो प्योर भक्त के घर में जन्म लेते हैं, जिनको बचपन से ही भगवान के शरण में जाने का तरीका पता चलता है ना। तो हम लोग क्यों ना वो कोशिश करें, अभी हम लोग ज्यादातर बड़े हैं, सबके बच्चे हैं, पर हम उस तरीके का नॉलेज, उनको लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये श्लोक में यहाँ रुकता हूं, पर उसके बाद एक और है 43, एक और श्लोक लेते हैं। ओ ऑन टेकिंग सच ए बर्थ, जो बहुत अच्छे फैमिली में लेते हैं, जो भक्तों के फैमिली में, ही रिवाइव द डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ एंड ही अगेन ट्राई टू मेक द फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस, ओ सन ऑफ गुरु। सो भगवान का जवाब ये है कि जो बिविल्डर्ड हो जाते हैं, जो उत्तेजित हो जाते हैं, जो लाइफ में ढंग से भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, तो उनका क्या हाल होगा। तो भगवान ने 2-3 एग्जाम्पल बताया कि जो सिर्फ मेटीरियल के लिए मेरे पास आता है, तो उसको बाद में भी मेटीरियल अच्छी फैमिली, एरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म मिलता है, पर तकलीफें वहां है। पर एक है भक्त ढंग से कर नहीं पाया, कोशिश कर रहा नहीं कर पाया, तो उसको
नेक्स्ट जन्म में ऐसे भक्तों के घर में जन्म मिलता है जहां से उसने छोड़ा था वहां से मिलेगा। और ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो मोड है हमारे पैशनेट और इग्नोरेंस में जाके भक्ति करते हैं, तो उनको हेलिश लाइफ में ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो उसके बाद कुछ चारा ही नहीं है। और चौथे वो हैं जो हायर प्लैनेट में चले जाते हैं, इंद्रलोक, चंद्रलोक, स्वर्ग में जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा इंजॉय की होती है, पर अच्छे कर्म भी किए होते हैं, तो उनको इंजॉयमेंट के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद वापस इसी पृथ्वी लोक में आना ही पड़ेगा। तो जो मेटीरियल वर्ल्ड है हमारा, ब्रह्मा और उससे नीचे, वहां पर सब इंजॉयमेंट भी है, पर आपको मुक्ति नहीं है इस शरीर से। आपको, आप यहाँ फंसे हुए हैं, है ना। तो भगवान यही हमें समझाने की बात कर रहे हैं कि हमें आ, इस जीवन में पूरी कोशिश करना चाहिए, कि पूरी अपनी तत्परता से कोशिश करें कि हम भक्ति में उस लेवल तक पहुंचे कि आखिरी समय में हमें भगवान का नाम स्मरण हो, हमें किसी से अटैचमेंट ना रहे, किसी चीज के पीछे माइंड ना अटक जा, अरे ये होता तो सही रहता था, अरे मरने से पहले ये कर लेते तो कर देता। ये भावना ये हमारे मन में ना रहे। उसको करने के लिए मैं कल एक क्लास सुन रहा था, तो एक प्रभु जी बता रहे थे बहुत अच्छा, कि हमारे मन में, जैसे हमारे हृदय में अनर्था बहुत है। हम लोगों ने बार बार सुना है ये अनर्थ जो है ये आते कैसे हैं। पर पहले अनर्था से पहले एक और सवाल, हमारे इस पूरे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में सबसे पहला राक्षस कौन था? कोई भी जवाब दे सकता है। सबसे पहला राक्षस कौन आया था, डीमन कौन था? सब लोगों ने नाम सुना उसका, और हम बहुत से प्रेयर में उसका नाम लेते हैं और डेली प्रेयर करते हैं। तो अगर आप भक्ति में हैं रेगुलर, तो सुबह और शाम उसका प्रेयर होता है, उसका नाम भी आ जाता है, वो डीमन का भी नाम आता है। महिषासुर। तो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, ये दोनों जो डीमन है ये भगवान के द्वारपाल ही हैं, पर ये हमारे सतयुग में सबसे पहले डीमन बन के आए थे, है ना। तो उनकी इच्छा क्या होती थी? हिरण्याक्ष ने, भगवान लॉर्ड राम ने, भगवान विष्णु ने ही वराह रूप में आके उस भाई का हत्या हुआ था हिरण्याक्ष का, जो खुद एक डीमन था। अब उस हत्या का बदला लेने के लिए दूसरे भाई हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या की, मतलब इतनी तपस्या हुई कि भगवान भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने आकर के उसको वरदान दिया। वो कहानी हमें पता है कि भाई वरदान दिया, आखिर में जाके भगवान खुद नरसिम्हा रूप में आए। यहाँ पॉइंट ये है कि वो एक डीमन जो है आज वो सत्ययुग में है, पर कलयुग में हमारे हृदय में भी वो एक अनर्था के रूप में, अनर्थ के रूप में बैठा हुआ है। वो अनर्थ जो हमारे, अब हमारे पास वैसी तपस्या तो नहीं है, वैसा वरदान नहीं है, पर हमारे पास ऐसी इच्छाएं हैं जो अनर्था, और हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी एक्टिविटी कर्मा पिछले जन्म और इस जन्म के वजह से हमारे हृदय में है। पर अच्छी बात है कि अब हमें मनुष्य जीवन में मिला है, क्योंकि हमने कर्मों में, जैसे विनु बता रहे थे कि हम अच्छे कर्म ले, कुछ हमने अच्छे कर्म भी अपने प्रीवियस लाइफ में किए थे, जो आज हमें भक्तों के साथ बैठ करके भागवत गीता सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है ना। तो अभी अनर्थ आते कैसे हैं वैसे? एक तो पता लग गया इच्छा है हमारी, और क्या क्या तरीके, अगर हम लोग अब जो आ गए हैं वो आ गए हैं, क्या और आ सकते हैं? हम ऐसा क्या करेंगे कि वो अनर्थ आ ही जाएंगे और भी? यस ब्रिजेंद्र। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे हम रहते हैं एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं, उससे भी आते हैं। राइट। जो देखते हैं उसी से। है ना। तो अनर्था को हमेशा हम लोग, एक ऑस्पिशियस होता है, एक इनऑस्पिशियस, संगत। जितने भी अनर्था है इनऑस्पिशियस एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उससे हमारे हृदय में आने लगते हैं। तो एक ऐसा एक्टिविटी बताओ जिससे मेरे तुरंत अनर्था आ जाएगा हृदय में। ऐसा मैं क्या करूंगा कि अनर्था चाहिए, या बोले भाई मैं तो अनर्था और चाहता हूं, क्या करूं? पहले हम ऑस्पिशियस में भी आएंगे, पर इन ऑस्पिशियस को समझ लेंगे, पता चलेगा कि हमारे हृदय में ऐसे अनर्था क्या है, और ऐसा क्या करूंगा, मैंने ऐसी क्या गलती की। जैसे चोर को पता होता है ना, चोर चाहे कितना भी स्मार्ट हो, उसको पता होता है मैं गलत कर रहा हूं, है ना। अब हम लोग बोल सकते हैं अरे उसकी रोजी रोटी का धंधा ही यही है, अरे वो बहुत सारे धंधे हैं, वो और भी कर सकता है, अरे मेरा तो रोजी रोटी, ये चोरी नहीं करूंगा तो कैसे खाना खाऊंगा। पर
उसको ये पता है कि अगर मैं ये करता हूं तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है, फिर भी वो करता है ना। तो अर्पणा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? संगत और विचारों से। संगत और विचारों से, हमारी संगत बहुत इफेक्ट करती है हमारे में। अगर हमारा चोरों का संगत होगा तो चोरों जैसा होगा। अब मैं एक दूसरी किताब पढ़ रहा था, एक और है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसा आप संगत करेंगे, उनकी जैसी लाइक होगी, जैसा उनका प्रेफरेंस होगा, उनकी इच्छाएं होंगी, वो मेरे में आने लगेंगी धीरे धीरे। तो संगत का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप खराब संगत में जाएंगे, एक ना एक दिन वो आदत आपको आ ही जाएगी। अगर कोई स्मोकर है या ड्रिंकर है या कोई ऐसा पदार्थ खाता है या मीट खाता है, ऐसी संगत में अगर हम लोगों को बार बार इन्वॉल्व करेंगे तो हम लोगों को वो आ जाएगी। पर इसमें अच्छा न्यूज़ भी है, एक बड़ी अच्छी बात है, भगवान ही बता रहे हैं और प्रभुपाद बहुत बार बार बता रहे हैं इसमें, ये जो अनर्थ हम अपने साथ बैगेज लेके आए हैं या जो हम लोग अभी हालचाल में ले रहे हैं, उसको हटाने का तरीका बहुत अच्छा है। और अनर्थ क्या है कर सकते हैं हम, और क्या है, हो सकता है कि हमारे मन में, हृदय में वो कुटीति जो अनर्थ वैसे भाव आने लगे। और क्या ऐसा चीज है? एक तो संगत हो गया, दूसरा खराब विचार। हाँ, खराब विचार तो कहीं ना कहीं से आते हैं ना, वो संगत से ही आते हैं वैसे। आप, है ना, अननेसेसरी गॉसिप करते हैं हम लोग, फालतू का प्रजल्पा चलता है, उससे भी आते हैं, विचार हमारे खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। और सबसे मेजर क्या है? लालच। हाँ, लालच, आपके डिजायर भी है जो आपको, अगर डिजायर पूरे नहीं होंगे तब अनर्थ ज्यादा आते हैं। आपको गुस्सा आने लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, अनर्थ सब बोलेंगे। वो उससे हमारा जो मेजर है, सबसे ज्यादा खराब है, हमारा भक्तों का निंदा करना। जो भी भक्त हैं, अगर हम उसकी निंदा करते हैं या उनके बारे में सोचते भी हैं, उससे ज्यादा खराब पनिशमेंट और कुछ मिल ही नहीं सकता। अब हम सब बोल सकते हैं अरे हम तो भक्तों की संगति नहीं करते, अब उनके बारे में खराब कैसे बोलेंगे? पर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों के विचारों में, जो भी अर्पणा माता जी ने बोला कि हमारे जो थॉट प्रोसेस में अगर भक्तों के बारे में बुराई हुई, आपने शब्द निकाले हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई, सोचा भी है आपने, तो आपके अंदर में वो जो कुटुति है, जो खराब चीजें हैं, वो आने लगती हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट क्या होता है कि भगवान धीरे धीरे आपका जो नॉलेज है वो लेना शुरू करते हैं। भगवान नॉलेज ही हमें देते हैं, राइट? सर्वस्य चाम हृदय सुनि विस्तो। मैं हर किसी के हृदय में हूं। नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस और रिमेम्बरेंस, ये मैं ही देता हूं, भगवान चैप्टर 15 में बोल रहे हैं। तो नॉलेज क्या करते हैं फिर भगवान, जब आपके में अनर्था बहुत भर जाता है, तो धीरे धीरे भगवान ने जो आपको नॉलेज दिया है वो लेना शुरू करते हैं। तो अगर हमारे में नॉलेज नहीं रहेगा, अभी हम लोग नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द भागवत गीता, ये सब, जिससे हमारा इंटेलिजेंट इंप्रूव होगा। पर अगर भगवान जब नॉलेज दे सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं। वो ले किस ले रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर में अनर्था बहुत हो गया, आपने बहुत सारे डीमन पाल लिए हैं। तो डीमनों के पास नॉलेज नहीं होता है, वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों। हिरण्यकशिपु ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं था, रावण ऐसा नहीं था पढ़ा लिखा नहीं था, ये सब ज्ञानी है। पर उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो भगवान ले लेते हैं। और वो धीरे धीरे ले लेते हैं और वो डिमिनिश हो जाता है। तो आप हैं तो इंसान रूप में, पर आपकी हरकतें जानवर से बदतर हो जाती, जो हम लोगों को दिखता भी है। यहाँ पे ऐसे हैं लोग जो कहते तो इंसान है, उनकी हरकतें ऐसी हैं जो दूसरों को दुख देना चाहते हैं, है ना। दूसरों को, अभी विनू ने बताया कि हम दूसरों की भलाई कर रहे हैं, अच्छा ही सोचें, ये हमारा मेन इंटेंशन रहता है, क्योंकि हम लोग भक्त हैं। हम हर किसी के हृदय में भगवान को देखते हैं। तो अगर हम लोगों में ये अनर्था है, तो हमारे में वो नॉलेज एक्वायर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत धीरे हो जाएगी। तो इसलिए हमें अनर्था को कम करना है। अब कम कैसे किया जाए, या कम और बिल्कुल जीरो किया जाए, जिससे हमको भगवान हमारे पर मर्सी करें, वो अपनी ब्लेसिंग दें कि आपको ये जो ज्ञान है बहुत जल्दी समझ आ जाए। तो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला है कि जब हम भक्तों की निंदा कर रहे हैं तो भक्तों के साथ रहें और उनका तारीफ करें, उनकी जो अच्छाइयां हैं उन पे ज्यादा ध्यान दें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बार बार अम्मा से भी बात होती है तो एक चादर है, एक चादर में एक ब्लैक रंग का डॉट है।
अगर मैं आपको पूछूंगा क्या दिख रहा है, तो आप लोग सब लोग उस डॉट को पहले देखेंगे। इतने पूरे चादर में सफेद है, वो दिख रहा नहीं है, पर हमको वो डॉट नजर आता है बड़ी जल्दी, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वैसे ये हर किसी के साथ, ये हमारी आदतें हैं। तो जब हम किसी को देखते हैं तो उसमें अच्छाइयां नहीं देखने की जगह उसकी वो बुराई ढूंढते हैं जो हम, जिसमें हम लोग गॉसिप कर सके, उसकी बुराई कर सके, प्रजल्पा कर सके। ये हमें आदतों को कम करना चाहिए। चाहे हर इंसान हो, चाहे वो अभी, जैसे जगाई और मदाही की कहानी बार बार आती है, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 550 साल पहले, वो दोनों बिल्कुल डीमन जानवर जैसे थे। हर किसी को परेशान करना, लूटना, चोरी, ये सब काम उनका था। फिर भी भगवान ने उनके हृदय में जा करके वो अनर्थ को हटा करके उनको प्योर भक्त बना दिया। उनकी कहानी बहुत है आगे जा करके। वो भक्त बनने के बाद जो उनके लक्षण थे, जो उनकी जो क्वालिटी थी, वो एक प्योर भक्त जैसी थी। और वो ऐसे बिल्कुल रातों रात चेंज नहीं हुआ, पर धीरे धीरे भगवान ने उनको वो मौका दिया, एक। और दूसरा, भगवान इस तरीके से चाहते हैं कि एग्जाम्पल दे करके कि ये दो जो लोग थे बिल्कुल जानवर जैसे थे, ये परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम लोग तो डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। तो वो परिवर्तन का पहला, सबसे पहला भाग है कि हम भक्तों में अच्छाई देखें, बुराई ना देखें। दूसरे वर्ड में देखें कि अपने में बुराई देखें, अच्छाई ना देखें। लेट दूसरा बोलने लगे अच्छी बात है, पर अपने में बुराइयां ढूंढो। ये हो सकता है कि अपने में बुराइयां ढूंढे और दूसरों को बताए मैं इतना बुरा हूं। कोई है इसमें बताने वाला कि भाई मैं करने को तैयार हूं? चलिए अरविंद जी से पूछते हैं। अरविंद जी, गोस्वामी सर जी, बताइए। मेरे ख्याल से वो गायब हो गए। और कोई है कि हाँ भाई मैं अपनी गलतियां भी ढूंढता हूँ? जिग्ना माता जी। अपनी अपनी बुराई तो हमेशा उसके ऊपर गौर करते रहना चाहिए, सो दैट वी कैन मतलब फिक्स इट, और अपने आप को कॉन्स्टेंटली हम सुधार सके। बिल्कुल। पर दूसरों को बताने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। पर हम लोग कभी कभार, हम लोग अपनी बुराइयां तो नहीं करते हैं, पर अपनी लिमिटेशन हम लोगों को सीनियर लोगों से बतानी चाहिए। जो, जैसे हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, उनसे जाके पर्सनली डिस्कस करें कि मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। या जैसे बहुत से मैंने सुना है, बोलते हैं, पूछते हैं कि प्रभु जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। करेक्ट, ये बुराई आदत है, पर मैं पूछ रहा हूँ भाई मैं क्या करूँ। करेक्ट। तो अगर मैं पूछूंगा, अगर उनका कोई जवाब मिलेगा, जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा, अगर उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं, तो मुझे तुरंत उसको करने के एक जो सहानुभूति है, एक हिम्मत सी बढ़ेगी कि भाई मैंने पूछ लिया और मुझे पता है कि मेरी ये गलती है जो होनी नहीं चाहिए। अब किसी का होता है, मैं प्रचल्पा बहुत करता हूँ, बातें करे जा रहा हूँ बेक फालतू का, भगवान का कोई जिक्र नहीं है पर फालतू की बातें बहुत करता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे अनर्थ जो बैड हैबिट्स हैं। हम लोगों को अपने सीनियर से रिवील करके उनका निवारण, उसका सॉल्यूशन पूछना चाहिए। उसमें कोई गलत नहीं है ना। ये एक अच्छी आदत है, हमें पूछना जरूरी है। करेक्ट। यस अरविंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि देखिए, पहली चीज तो है आइडेंटिफिकेशन, राइट। पहली चीज है हमें मतलब वही है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट। उससे आपको पता लग जाएगा आप गलतियां कितनी करते हो। दूसरी चीज है, कुछ गलतियां हैं जो आप खुद सुधार सकते हो, पर बात सही है आपकी, जैसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जहाँ पे आपके गुरु की जरूरत पड़ती ही है आपको, राइट। क्योंकि और दूसरी चीज एक और सर, गुरु की जरूरत वहां पे भी है कि एक है ना कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। वी हैव टू गेट दिस करेक्टेड इन अ लिमिटेड काइंड ऑफ टाइम एज वेल, राइट। तो अगर गुरु से हेल्प ली जाएगी तो वो बहुत जल्दी आप उसे करेक्ट कर पाएंगे। कर सकते नहीं हैं, तो हो सकता है बिल्कुल। आपको बहुत मतलब टाइम लग जाए बहुत उसी चीज समय, को बहुत जन्म भी लग सकते हैं, बिल्कुल सही करेक्ट। बात। हमें इसलिए हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि गुरु का महत्व, जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत से जो नए भक्त हैं जो समझ रहे हैं इस क्लास में, हमारे कोई डेडिकेटेड गुरु नहीं है। हमें गुरु कैसे पिक करना है वो हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें गुरु वो ढूंढना है जो परंपरा में है और स्पिरिचुअली बोनिफाइड है, जिसने प्रैक्टिस किया लाइफ में, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। उन भक्तों को अपने लाइफ में लेके आना, उन सीनियर गोस्वामी को या
आचार्य को, जैसे प्रभुपाद हैं और बहुत सारे गुरु हैं हमारे, इनमें उनके साथ जुड़ना जरूरी है। जब हम जुड़ने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको देखेंगे, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि प्यूरिफिकेशन, जो क्लीनिंग प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। अब आप बोलेंगे अरे उसकी तो जरूरत नहीं है, किताब में तो सब कुछ दिया हुआ है, समझ ही आ गया, लेक्चर हो गया। नहीं, वो हमें लाना ही पड़ेगा। अगर हमें लाइफ में इस लाइफ को आखिरी लाइफ बनानी है तो हमें गुरु के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। पर हाँ, कोई कोई केस में है जिसमें कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर प्रभुपाद के साथ भी इंसिडेंट है, पर प्रभुपाद हमेशा इनकरेज करते हैं कि गुरु, स्पिरिचुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एक होना चाहिए जिससे आप इंटरेक्ट कर सकें, जिससे आप जुड़ सकें, अपना अपने जो समस्याएं हैं, भक्ति में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें, एक जो सेल्फ इवैल्यूएशन है, और उनके साथ इवैल्यूएट करने के लिए हमें गुरु चाहिए। जब हम वो करेंगे तो आपका जो ऑस्पिशियसनेस है, इन ऑस्पिशियस से ऑस्पिशियसनेस बढ़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। प्रभुपाद के हिसाब से 1 मिनट लगता है। अगर आपका जो इच्छा है, जो आपने निश्चय किया, आप बिल्कुल फेथ के साथ हैं और दृढ़ हैं, तो आपको 1 मिनट लगेगा वो आपकी लाइफ में चेंज आने के लिए। वो बहुत जरूरी है। तो हमारा एंड रिजल्ट जो होता है कि हम भक्ति में आगे तो बढ़े हैं, और उसके साथ साथ इस लाइफ में हमारे जो कर्तव्य हैं उसको किस तरीके से पालन करें और कंसिस्टेंट रहे उसमें। जब आप अपनी भक्ति ऐसा करेंगे ना, तो आपको आसपास के लोग में भी परिवर्तन दिखने लगेगा। आपको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी भक्ति बिल्कुल दृढ़ है, आपका आचार विचार, आपका कैरेक्टर, आपका परफॉर्मेंस, ये सब अच्छा है, तो आपका जो प्रचार है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका प्रचार ऑटोमेटिकली शो करेगा दूसरों को, और दूसरे चाहेंगे कि अरे आप तो बड़े ऐसा कर लेते हैं, अरे ऐसी सिचुएशन है, घर की सिचुएशन है, जो भी है, आप बिल्कुल विनम्रता रूप से करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि ये जो परिस्थिति आई है ये भगवान की दी हुई है, ये भगवान मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, है ना। तो हमें उसको उस एंगल से समझना जरूरी है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक है, और मैं इसको यही रोकता हूँ। कोई सवाल? आज का जो समरी है, जो अर्जुन पूछना चाहते हैं कि जो लोग बहुत बिविल्डर्ड रहते हैं, जो मतलब अपने हिसाब से करना चाहते हैं, अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, मुझे बताइए। वो सवाल अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं। अपने लिए जो पूछना था वो पहले पूछा था उन्होंने कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो भगवान ने उनको बताया क्योंकि डिटैचमेंट, उसकी प्रॉब्लम यही थी ना शुरू में, कि वो एक्सक्यूज दे रहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता बिकॉज ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये हो जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, ऐसे ऐसे राज्य मिलने से मैं क्या एंजॉय करूंगा, जब मेरे गुरु और मेरे भाई लोग ही की मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या एंजॉय करूंगा। ये उसके एक्सक्यूज थे। अगर हम अपने अपने लेवल में सोचें तो लगेगा अरे ये तो बिल्कुल सही बात बता रहा है, बंदा नहीं लड़ना चाहता, भाई क्यों भेज रहे उसको। पर भगवान उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, उसको ये भी बता रहे हैं कि ये पहला वॉर नहीं है जो भगवान ये अर्जुन ने लड़ा है। अर्जुन ने तो सिंगल हैंडेड 1 मैन आर्मी की तरह पूरे आर्मी को डिफीट करके उसके किंग को कैप्चर करके भी लेके आए हैं वो अकेले। तो ये पहला वॉर नहीं था। पर आज दुविधा यह है कि आज सामने उनके भीष्म पितामह, उनके दादाजी हैं, गुरुजी हैं, भाई लोग खड़े हैं, तो उसको और अरे ये तो गड़बड़ हो गई, है ना। तो वहां पर दुविधा ज्यादा है, तो वो एक्सक्यूज आने लगे। तो ये दुविधा हमारी लाइफ में भी रहती है, हम लोग कुछ ना कुछ बहाना लगाते हैं। भगवान तो हमारे सामने नहीं है, पर भगवान ने अपने इंस्ट्रक्शन हमें दिए हुए। अब हम उनसे लेसन लेना चाहते हैं कि हमारी जो माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है उसका कारण है हमारा अटैचमेंट, और वो अटैचमेंट को अगर आप धीरे धीरे कम करेंगे, जब जा करके आपकी परिस्थिति सही होगी और मन भगवान में मन लगेगा। दूसरा सवाल हमारे लिए है कि ऐसे बिविल्डर्ड हो जाते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, अपने मतलब के लिए भक्ति में आते हैं, तो उन लोगों का क्या हाल होगा। तो हाल है, एक तो हेलिश लाइफ, एक है रीबर्थ एरिस्टोक्रेट फैमिली, रीबर्थ इन पुअर फैमिली, रीबर्थ इन डिवोशनल फैमिली, और आप हायर प्लैनेट में जाकर के एंजॉय करके फिर वापस आएंगे, और आना ही पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड है सब। तो आप एंजॉय करने के बाद 1000 साल एंजॉय किया, आपकी एक्सपायरी हुई, फिर आप नीचे आए,
फिर पृथ्वी लोक में गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। सबसे अच्छा इसमें यह है कि आपको अगर जन्म लेना भी पड़ता है तो आप भक्तों के घर में लीजिए, चाहे अमीर है गरीब है फर्क नहीं पड़ता है, पर भक्तों के घर में ये इच्छा होनी चाहिए। जो हमारे एक श्लोक में भी, ना धनम न जन्म न सुंदरीम कविता म जगदीश्वर काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे। मुझे जन्म आफ्टर जन्म दे दो भगवान, मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, कोई सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म, ना मुझे जन्म भी नहीं चाहिए। अगर देना है तो मुझे जन्म आफ्टर जन्म मैं आपकी सेवा कर सकूं। वो सेवा जब ही होगी जब आप भक्तों के घर में या भक्तों के संगत में रहेंगे। और ये जो बर्थ है अभी हम लोग जो यहाँ जो बैठ के कर रहे हैं, आप लोग ये अभी लगेगा बहुत लाइटली, पर आपको ये बहुत रेयर बर्थ है। मैं बार बार अपने फैमिली बोलता हूँ कि हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये संगत मिला, इस जन्म में मिला, और इतने सारे अच्छे प्रभुपाद के भक्तों के संगत में मिला। ये बहुत रेयर है। इसको चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इस बर्थ को यूटिलाइज करिए, ये संगत को मत छोड़िए। हमें बहुत सी चैलेंजेस आएंगे, बहुत आएंगे, बहुत भगवान परीक्षा लेते रहेंगे कि ये एक सच्चा भक्त है, इसको वापस लाना है मुझे अपने पास, तो वो परीक्षा आपकी लेंगे। हर पग में पर आपको सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, कहीं ना कोई भक्त आपको दिलवाई देगा। पर मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना है कि आप इस मार्ग को ना छोड़ें, है ना, वो जरूरी है। तो ये आज का है संदेश। पर हमारे में अनर्थ है, पहले मान के चलें। हम उस काले दाग को देखें उस चादर में जो हमारे में भी है, हम दूसरों में देखना चाहते हैं, पर ये अपने में भी है जो हम देखें अपने गुरु से, अपने शिक्षा गुरु से, या क्लास में कभी 1-on-1 अगर आपको लगे हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे में वो ऐसे हैबिट हैं जो हमको इस मेटीरियल वर्ल्ड में लेके आए हैं। अगर हम प्योर होते, सत भक्त होते, तो यहाँ पे इस कलयुग में क्यों आ रहे होते? हम तो भगवान के धाम में बैठे होते। करेक्ट। हम यहाँ आए हैं, हमारे में कोई अनर्थास है, हमारे में कोई कमी है, पर कोई चीज अच्छी हुई है जिसकी बदौलत आज हम इन भक्तों की संगत में रह सकते हैं, है ना। तो लेट मी स्टॉप हियर।